There is a possibility that you might experience poor audio or video quality because of webcast from homes. So request you to check at your end. If there is any issue, you can also mention in the chat box. Today's topic is transforming our villages. And for that, we have with us Padma Shri Popatra Pawar. He is the Sarpanch of Hivre Bazar, a Gram Panchayat of Ahmednagar district, Maharashtra. Shri Pawar, inspired by Anna Hazare, started a rainwater harvesting and watershed conservation and management program in Hivre Bazar. These programs, along with the planting of lakhs of trees, have been credited for transforming Hivre Bazar from a drought-prone village into a green model village, which is it today. He was featured in an India Today cover story as the person who demonstrated how rural water resources could be revived. From just 90 wells in the 1990s, Hivre Bazar today has around 294 water wells. Shri Pawar also banned alcohol in the village, made HIV tests mandatory before marriage, and turned it into a nearly mosquito-free area. Shri Pawar's contribution in the field of social work has been recognized with the Padma Shri this year. Shri Pawar also serves as the executive director of Maharashtra State Government's Model Village Program and a member of National Level Gramin Reform Committee. The Hivre Bazar Gram Panchayat also won the first national award for community-led water conservation in 2007. He has been felicitated with first international CSR award, Amazing Indian Award by Times Now, and Vibrant Gujarat's AgriGold Award, Vibrant Gujarat's AgriGold Award. Furthermore, he works with Oxford, Stockholm, Tokyo, and London universities for research on water management. For the convenience of everyone, we'll first go through the presentation and take questions after the presentation. Now, without further ado, I would request Shri Popatra Pawar to please take over from here. Thank you. Sir. नमस्ते सबको नमस्कार। मुझे आज आपके साथ बात करने का मौका रेड्डीज फाउंडेशन के कारण मिला है। इसके पहले ही 2 बार मैं हैदराबाद के ऑफिस और अपने कैंपस में आ चुका हूँ। रेड्डीज फाउंडेशन जो कि पूरी दुनिया भर में फेमस है, अच्छा काम भी आपका है, एजुकेशन कैंपस तो अपना बहुत बढ़िया है। तो मुझे आपके साथ बात करने का आज मौका मिला है। लॉकडाउन के कारण सब परेशान हैं, दुनिया भी परेशान है। कोरोना का सामना कैसा करना है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें श्रीधर जी ने जो अभी आपको बताया कि हिवरे बाजार एक ड्राउट प्रोन विलेज है जो कि महाराष्ट्र के शिरडी वाले डिस्ट्रिक्ट में आता है, अहमदनगर में। 200-300 एवरेज रेनफॉल है। इतनी कम बारिश के कारण 90% फैमिली माइग्रेट होती थी टू सर्च फूड एंड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो प्रयास पंचायत की लीडरशिप, कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट स्कीम ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और जो ग्राम सभा में सपोर्ट मिला, इसके कारण एक गांव आज हरा भरा और पानीदार और स्वच्छ और व्यसन मुक्त बना है। इसलिए जो अभी प्रेजेंटेशन के नेक्स्ट स्लाइड, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक और ब्लॉक में हिवरे बाजार जो कि एवरेज 976 हेक्टर टोटल एरिया है और गांव की आबादी अभी 1400 के आसपास है। 315 हाउस होल्ड्स है और 200-300 एवरेज रेनफॉल है और हर 5 साल में से 2 साल ड्राउट सिचुएशन हो और ऐसे हालात में रेनफीड क्रॉपिंग पैटर्न था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ऐसे हालात में 1970 to 89
इसमें जो पॉवर्टी ट्रैप था हमारा, तो इसमें एक है कि 72 के ड्राउट के बाद 77, उसके बाद 80, 82 कंटिन्यू 3 ड्राउट के कारण जो गांव के हालात इतने खराब हो गई, इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, उसके साथ साथ क्राइम और माइग्रेशन भी जुड़ गया, और इसके कारण लोग गांव छोड़ के शहर जाने लगे। और जो आदत लोगों को लग गई, तो ये रेन फीड एरिया था, रेन फीड क्रॉपिंग पैटर्न था, हेवी सॉइल इरोजन था, और काफी माइग्रेशन, उसके साथ सोशल प्रॉब्लम भी शुरू हो गए, क्राइम आ गया, अल्कोहल जो है, तो इतनी जोर से हर घर घर में शराब बनती थी। एक लोकल लीकर में एक लड़की की शादी बनती थी, मड और स्टोन के मकान थे, और पानी दिसंबर एंड को ही पानी खत्म हो जाता तो महिला परेशान हो जाती। नेक्स्ट, ये सिचुएशन गांव की थी। और 89-93 जहां से चेंजेस शुरू हो गए, तो मैं 1989 में गांव में आके पंचायत का निर्विरोध यूनानिमस सरपंच बन गया, क्योंकि उसके पहले मेरा खुद का करियर, मैं एमकॉम तक पढ़ाई की है। अच्छा, मैं ऑल इंडिया खेल चुका हूँ क्रिकेट, जो कि पुणे यूनिवर्सिटी वेस्ट जोन विनर होके हम ऑल इंडिया चेन्नई गए, तो ऑल ओवर इंडिया से हर जोन से रनर और विनर 10 यूनिवर्सिटी थी उसमें, लीग बाद में नॉकआउट। तो उस वक्त हम फाइनल में दिल्ली के साथ हार गए थे, लेकिन काफी अच्छा क्रिकेट खेलने को मिला। इसके साथ साथ जो अच्छे दोस्त भी मिल गए। मुंबई में खेला करता था, पुणे में खेला करता था। एक्सीडेंटली 89 में गांव आ गया। इसका कारण ये है कि गांव की यूथ और महिलाओं का ज्यादा फोर्स हो गया कि अरे अच्छा नाम है तेरा, अच्छा क्रिकेटर भी, अच्छा गांव में मिलजुल के कुछ कर सकता है, इसलिए फोर्स हुआ, यूनानिमस सरपंच चुना गया। और सरपंच चुन गया तो उस वक्त पूरा परिवार अपोज में था कि भाई जो गांव में आप काम कर रहे, तो इस गांव में तो सब शराब, लड़ाई झगड़े। 1982 में एक थोड़ी लड़ाई झगड़े के कारण गलत फहमी हो गई, उसमें आपस में लड़ाई झगड़े हो गए। उसके बाद हिवरे बाजार एक ब्लैक लिस्टेड गांव बन गया पूरी डायरी। और जी ऐसी हालात में सरपंच हो गया, तो सामने कोई प्लान नहीं था, कोई कारपोरेट फंड या कोई गवर्नमेंट फंड, एनजीओ फंड, ऐसी कुछ मूवमेंट भी नहीं थी। शुरुआत एक थी कि करना है, लेकिन क्या करना है, हाथ में कुछ नहीं था। इस शुरुआत लोकल कंट्रीब्यूशन, फ्री लेबर सिस्टम से हो गई। और उसका कारण एक हो गया कि फ्लैग होस्टिंग के लिए 26 जनवरी फ्लैग होस्ट करने के लिए पंचायत में आ गया। शहर में रहता था, जब गांव आ गया तो सारे विलेजर्स, महिला, यूथ और सभी का था कि अच्छे लिखे पढ़े लीडरशिप है, सरपंच अच्छे, पंचायत के प्रेसिडेंट है, तो वो अच्छा काम करेगा। और इससे फिर मैं डर गया कि भाई खुद का एक अच्छा करियर बन सकता था, जॉब हाथ में थे, क्रिकेट भी अच्छा फ्यूचर दिखता था, तो गांव में आके क्या करूं, मेरी परिवार में से सब अपोज से। लेकिन कुछ हुआ, उस वक्त ऐसी घटनाएं हो गई कि मुझे गांव में 2-4 दिन के लिए रुकना पड़ा, और वैसे श्रमदान और स्कूल का मेंटेनेंस के कारण शुरुआत हो गई। और फिर हमने ग्राम सभा में जब देखा, तो सब लोगों ने इतनी डिमांड दी, किसी ने कहा भाई रोड बनना चाहिए, विलेज का जो विलेज टेम्पल है वो टेम्पल ठीक होना चाहिए, टेम्पल के पावर सप्लाई होना चाहिए, गांव में ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम है, गांव में ज्यादा अल्कोहल के कारण परेशानी है, तो ये सब बंद होना चाहिए। जब ये सारे प्रॉब्लम सामने आ गए, तब मैं शुरू में डर गया, फिर उसकी प्रायोरिटी लीज बना, और फिर प्रयास किया अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ बात करके, तो क्या करना चाहिए। तो पहली शुरुआत हमने स्कूल से लिखी। हाँ, तो इस तरह से एक 7 सूत्र, उस वक्त अगस्त क्रांति गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑल ओवर इंडिया चल रही थी। उसी वक्त महाराष्ट्र में उस वक्त के मुख्यमंत्री थे सुधाकर राव जी नाईक। उन्होंने जो आजादी की लड़ाई में जिन्होंने स्वतंत्र सेनानियों ने काफी अच्छा योगदान दिया था, उस परिवार के लोगों के साथ बात की कि क्या होना चाहिए। उस वक्त अग्रणी स्वतंत्र सेनानी थे अच्युतराव जी पटवर्धन, जिन्होंने कहा कि बहुत कुछ तो किया है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा होना चाहिए जो गांधी जी का सपना है, सेल्फ सफिशिएंट विलेज का,
उसकी ओर अगर हम जाते हैं तो कुछ तो भी आउटपुट निकल आएगा। फिर एक रालेगांव सिद्धि में अन्ना जी का प्रयास चल रहा था। सरकार ने कहा क्यों न हर ब्लॉक में एक मॉडल विलेज बने, और महाराष्ट्र में 92-93 में मॉडल विलेज प्रोग्राम लॉन्च हुआ। उस वक्त तो 1994 4 साल गांव में प्रयास जोर से हमारे चल रहे थे। श्रमदान, स्कूल रिपेयरिंग, रास्ते और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ पहला प्रोजेक्ट हमने किया था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, और वो वहां चराईबंदी, कुऱ्हाड़बंदी से लेके हमने आगे लेके गए। और जब आदर्श गांव अन्ना साहब हजारियात प्रेसिडेंट रहे, उस वो खिवरे बाजार आके गए। उन्होंने 5 सूत्र रखे थे। ओपन ग्रेजिंग को बैन, लोकल लीकर प्रिपरेशन ड्रिंकिंग बैन, उसके साथ साथ जो आज आप 5 सूत्र थे, लेकिन जब मैं आदर्श ग्राम का प्रेसिडेंट बन गया 2008 में, उस वक्त और 2 जोड़ दिए हमने। एक था ओडीएफ विलेज होना चाहिए, और दूसरा था ट्यूबवेल को बैन, यानी वाटर बजटिंग। तो वाटर बजट और ओडीएफ विलेज, ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज, ये 2 को जोड़ दिया, और 7 सूत्रों से लेके जो मेरा खुद का लास्ट 30 इयर्स का अनुभव था वो लगा दिया, और 2 साल का मॉडल बनाया और आगे का काम शुरू हुआ। तो फिर पहला बेसिक हमारा वर्क एक था कि पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर और एग्रीकल्चर वाटर, और इसके लिए काम किया। तो जो 95-2000 5 साल का प्लान बन गया, और इस प्लान के आधार पर हमने काम किया। विथिन 2 इयर्स, 2 साल के अंदर हमारा पूरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ, क्योंकि लीडरशिप मेरी थी, ग्राम सभा 100% सपोर्ट कर रही थी, लाइन डिपार्टमेंट वहां सपोर्ट कर रहे थे, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था, और लोगों को जरूरत थी, क्योंकि गांव में पीने के लिए पानी नहीं था, एग्रीकल्चर वाटर प्रॉब्लम, माइग्रेशन था, तो लोग मान गए ये करेंगे। और इसलिए हमने कई प्रोजेक्ट बाहर जहां शुरू हो गए, बाद में प्रॉब्लम में आ गए, वो देख के आए। फिर 7 सूत्र उनको समझाए कि भाई हम अगर ज्यादा पानी वाली फसल उगाएंगे तो हम वापस क्रिटिकल कंडीशन में चले जाएंगे। इसलिए पहला निर्णय होना चाहिए ट्यूबवेल को बैन, क्योंकि डगवेल यूज करेंगे, दे यूज ओनली फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ट्यूबवेल को परमिशन है खाली ड्रिंकिंग वाटर के लिए। एग्रीकल्चर यूज, दे यूज ओनली डगवेल्स, और ये पहला हमारा निर्णय हुआ। और उसके साथ साथ फिर जहाँ प्लांटेशन होगा वहां ट्री फिलिंग को बैन कर दिया, उसके साथ लोकल लीकर प्रिपरेशन ड्रिंकिंग बैन, और ये 7 सूत्रों के आधार पर एक काम शुरू हुआ, और हिवरे बाजार एक 2 साल के अंदर अच्छा मॉडल बन गया। उस वक्त जो फंडिंग सपोर्ट था वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी, जो 72 के ड्राउट के बाद 77-78 में लॉन्च हो गई। फंड्स मनरेगा के थे उस वक्त, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के थे, लेकिन यूज किया गांव के सारे लोगों ने पॉजिटिव, और इसके कारण गांव का वाटर टेबल बढ़ गया, और समस्या जो थी ड्रिंकिंग वाटर की वो पहले खत्म हो। नेक्स्ट। हाँ, तो ये काम हमारा शुरू हुआ पहले बैरन हिलोक्स से, बिल्कुल जो बचपन में देखा था 75, 76, 77 जो स्कूल 4 तक पढ़ाई गांव में की, हरे भरे पहाड़ थे, झरने का पानी, सरफेस वाटर ड्रिंकिंग के लिए यूज करते थे, इतना वाटर लेवल अच्छा था। लेकिन बाद 72 का ड्राउट, 77, 78, फिर 81, 82, 3 ड्राउट के कारण माइग्रेशन शुरू हुआ और ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे गई। उसके बाद जो समस्या आ गई तो ये थी कि गांव में शुगर केन भी था, पहले 89 के पहले शुगर केन था, ग्रेप्स से, पोमोग्रेनेट थे, लेकिन लोगों ने इतना पानी वाटर लिफ्टिंग किया तो डगवेल खत्म हो गए और लोग बोरवेल की ओर जा रहे थे। और उसी वक्त मैं गांव की पंचायत का सरपंच बना, तो पहला निर्णय हमने किया कि मोर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को हम बैन कर देंगे, लाइक शुगर केन, बनाना, पोमोग्रेनेट, ग्रेप्स, और सीजनेबल क्रॉपिंग पैटर्न लाए, जैसा कि ओनियन, पोटैटो, ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल्स और फ्लोरिकल्चर, और डेयरी मिल्क कलेक्शन और डेयरी डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया। और जब इस तरह से टॉप टू बॉटम, रिच टू वैली का प्रोग्राम हुआ और इतना साइंटिफिक काम किया हमने, क्वालिटी वर्क किया, क्योंकि ये काम गवर्नमेंट का नहीं, ये हमारे विलेज का फ्यूचर का काम है, इसमें हमारा फ्यूचर है, पानी की समस्या खत्म होने वाली है।
इसलिए लोगों ने मिलजुल के काम किया। गवर्नमेंट लाइन डिपार्टमेंट ने भी काफी अच्छा सपोर्ट किया और हिवरे बाजार जो रेनफीड था अभी वो पानीदार बन गया। नेक्स्ट था हालात पहले बिफोर डेवलपमेंट का। रेनफीड क्रॉपिंग पैटर्न, बाजरा और ज्वार, मड और स्टोन के मकान और ब्लैक स्टोन थे पहाड़ी पे, बस एक भी पेड़ नहीं था। और अभी के हालात देखो, ये गांव अभी ऐसा बना। नेक्स्ट फिर सारी ट्रीटमेंट्स हो गई, टॉप टू बॉटम, रिस्ट टू वैली, और हर एक बूंद बारिश की रिचार्ज हो गई। बेसिक वर्क हमारा जो है एफॉरेस्टेशन, जहां ग्रास डेवलपमेंट और ट्री प्लांटेशन है। सेकंड फेज में हमने किया सॉइल कंजर्वेशन, 100% वाटर रिचार्ज किया सॉइल में। और थर्ड फिर ड्रेनेज लाइन में आ गए और ड्रेनेज लाइन में वाटर कंजर्वेशन किया। और फोर्थ जो है सपोर्ट उनको वो मिल गया मिल्क डेयरी डेवलपमेंट का। वो 4 बेसिक हमारे थीम है, एफॉरेस्टेशन, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन और एफॉरेस्टेशन। और इनको सपोर्ट मिल गया बैंक का और विलेज लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी का। उसके कारण पानीदार गांव तो बन गया, वाटर टेबल भी बढ़ गया। फिर अभी गांव ऐसा, ये प्रयास हमने काफी अच्छा किया, क्योंकि गांव में वैसा ही महाराष्ट्र में 81.50 मैसिव बेसॉल्ट है और बेसॉल्ट में तो 1.5 और 0.6 या 7% वाटर रिचार्ज कैपेसिटी हो। ये जो आप वाटर बंड देख रहे हैं, वाटर पॉन्ड, ये ऐसा था कि अगर 400 मिलीमीटर बारिश हो गई, 400 मिलीमीटर, तो भी डगवेल में उतना ही पानी जितना 50 मिलीमीटर में मिलता था। फिर क्या होता है, ये ऑपरेशन होता था। फिर हमने लोकल नॉलेज हमारा और ग्राउंड वाटर सर्वे डिपार्टमेंट का टेक्निकल नॉलेज और इनोवेटिव फंड मिल गए हमारे डिस्ट्रिक्ट पंचायत से, और इसलिए हमने सरफेस वाटर को ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। आर्टिफिशियल एक्यूफर क्रिएट किए, 500 मीटर में 3 फेज में 20 फीट से लेके 50 फीट तक ड्रिल किया, उसमें ब्लास्ट किया 3 फेज में, और आर्टिफिशियल क्रैक डेवलप हो गए रॉक में, और जो सरफेस वाटर इवापोरेट होता था वो रिचार्ज हुआ और वाटर टेबल बन गया। जो 4 नंबर की पिक्चर देख रहे हैं हम, हैंडपंप को दिसंबर में पानी खत्म होता था, अभी मई एंड को भी इसमें पानी चलता है। ये थोड़ा लोकल नॉलेज और आर्टिफिशियल जो गवर्नमेंट का टेक्निकल नॉलेज यूज करके हमने ये किया। ये डीप सीसीटी का काफी इफेक्टिव मॉडल हमने 2004 में दिया, जो हिवरे बाजार में, जहाँ टॉप पहाड़ी पे हार्ट था। फिर वहां तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से मजदूर काम करेंगे, तो मजदूर वो डिपिनिंग नहीं कर सकते थे, इसलिए पोकलैंड तो यूज नहीं करते थे, और फंड तो ईजीएस के थे। तो फिर हमने जो प्रयास किया वो गवर्नमेंट को एक एग्जाम्पल देने के लिए 25 हेक्टेयर में पोकलैंड मशीन का यूज किया, कंटूर मार्कर से वाटर लेवल की, और जो डीप सीसीटी बन गई। तो इसके कारण जो वहां पहाड़ी पे 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक डीप सीसीटी, और इतना अच्छा रिजल्ट आ गया। तो पर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर विजिट करने आए, वाटर कंजर्वेशन मिनिस्टर आ गए, फॉरेस्ट मिनिस्टर आ गए, और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में उन्होंने 500 हेक्टेयर पे प्रोविजन की। और जब सक्सेस हुआ तो आज महाराष्ट्र का सबसे अच्छा मॉडल आज ये डीप सीसीटी का हिवरे बाजार मॉडल, 100% रिचार्ज, पहाड़ी पे फिर प्लांटेशन हुआ, मोर देन 10 लाख टोटल ट्री प्लांटेशन। इसमें फर्स्ट फेज में फॉरेस्ट है, सेकंड में विलेज पंचायत है, थर्ड में प्राइवेट हिलोक से, ऐसा 3 फेज में प्लांटेशन किया, और कंट्रोल ग्रेजिंग अडॉप्ट किया। पहला फॉरेस्ट पे कोई ग्रेजिंग नहीं करेगा, बाकी ओपन रखा। उसके रिजल्ट देखे तो फिर विलेज पंचायत को कंट्रोल ग्रेजिंग हुआ। और थर्ड फेज में फिर सारे किसान जिनके अपने प्राइवेट हिलोक्स है, पहाड़ी है, बस वहां पर किया। आज 100% ओपन ग्रेजिंग बैन है। लोग 100 रुपीज पर सीजन इस कंसेप्ट से अगस्त सितंबर के बाद, जब यानी दशहरे के बाद शुरुआत होती है ग्रास कटिंग की, और लोग घास काट के लेके जाते हैं। स्टॉल फीडिंग बढ़ गया, अभी मोर देन 4000 लीटर मिल्क कलेक्शन है हमारा। जिस गांव में जब हमने प्रयास किया, शुरुआत किया,
उस वक्त 95 2000 तक चाय में डालने के लिए दूध नहीं मिलता था। आज 4000 लीटर मिल्क कलेक्शन। नेक्स्ट वन, ये वाटर बजट है हमारा और हम 95 से वाटर बजट करते हैं। रेनफॉल कितना है, रिचार्ज कितना हुआ, ये ऑपरेशन कितना है, इस तरह से हमने वो सब प्लानिंग किया क्योंकि हमारा खुद का अनुभव था गांव का। पहला तो एक रेनगेज गांव में छोटा वाला और दूसरा तो रेवेन्यू के ऑफिस में तहसील में था सिटी में, कहा कितनी बारिश वेरिएशन आता था। फिर हमने 2004 में 3 वाटर शेड में, क्योंकि 1000 हेक्टर में 3 वाटर शेड है। वन नंबर जो है कि 500 हेक्टर का है और दूसरे दो 2.5 ऐसे 1000 के 3 है और इसमें तीनों में भी वेरिएशन आता था बारिश। एक वाटर शेड में अगर 20 मिलीमीटर बारिश है तो दूसरे में 30 दिखती थी या चौथे में और कम ज्यादा होती थी। फिर यह प्रयास हमने किया और ये प्रयास के कारण जो 2018 की हालत थी 187 मिलीमीटर रेनफॉल थी, बहुत कम आ गई थी। और उस वक्त प्रॉब्लम ये था कि दिसंबर में ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम आते थे, लेकिन हमने रब्बी की क्रॉप छोड़ दी, 100% खरीफ लिया और रब्बी छोड़ दिया और ड्रिंकिंग वाटर को पानी रखा तो हम सरप्लस में आ गए। और 9.42 करोड़ लीटर्स ये हमारा 31 मई का वाटर बजट निकला। और 3 वाटर बजट जब रेनगेज बिठाए तो आज जो 2000 लास्ट ईयर की हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि हमारे 160 मिलीमीटर ही बारिश थी, फिर भी खरीफ और रब्बी की फसल मिल गई और समर सीजन खाली ड्रिंकिंग वाटर पर। क्योंकि ये कैलकुलेशन सामने आ गए पिछले 20 साल के अंदर जो अलग अलग सर्वे से, अगर 100 mm रेनफॉल है ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम सॉल्व होता है, अगर 200 मिलीमीटर है तो खरीफ और ड्रिंकिंग वाटर है, और 300 मिलीमीटर रेनफॉल है तो 100% ड्रिंकिंग वाटर, 100% खरीफ, 70% रब्बी और 30% समर सीजन। ये हमारा कैलकुलेशन 2018-19 में सामने आ गया। और जब ये सामने आ गया तो ऐसा हालत था अगर रब्बी में लोग ओनियन को एक से ज्यादा का पानी देते हैं तो जनवरी के बाद गांव में पीने के लिए पानी नहीं बचता। तो ये हिवरे बाजार का सक्सेस जो है, तो सक्सेस यही है कि वाटर बजटिंग। नेक्स्ट वन, ये है वाटर बजट 1920 का जो टोटल 3 इतना था। तो अभी हम ऐसा करेंगे, एक फर्स्ट और एक दो ले लेंगे और टॉप जो भी पैनलिस्ट के लिए भी हमने थोड़ा डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट वन, तो ये था हमारा वन एजुकेटेड मैन कैन चेंज वन होम, वन एजुकेटेड होम कैन चेंज वन विलेज एंड वन एजुकेटेड विलेज कैन चेंज एवरीथिंग। तो हिवरे बाजार का जो एजुकेशन है वो इस तरह से, जैसे वाटर लिटरेसी, क्रॉप लिटरेसी, एनवायरमेंट लिटरेसी, अल्कोहल लिटरेसी, तो इस तरह से हमने ये प्रयास किया। अभी हम ऐसा करेंगे, थोड़ा पैनल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये विलेज पंचायत और सपोर्टिंग सिस्टम। नेक्स्ट, फास्ट लगे 1 मिनट के अंदर, इस तरह से। नेक्स्ट, ये अभी कैश क्रॉप। नेक्स्ट, ये रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ, 70 फैमिलीज they came back to from मुंबई, पुणे, ठाणे to हिवरे बाजार। नेक्स्ट, और ये इस तरह से जो लैंडलेस परिवार थे तो इस तरह से अभी वो लैंड होल्डर भी बन गए, क्योंकि गांव की जमीन, सेलिंग ऑफ लैंड टू आउटसाइडर्स ये बैन है। और फर्स्ट प्रायोरिटी टू लैंडलेस पीपल, क्योंकि अभी 70 आर्मी मैन से गांव में नियर अबाउट 45 गवर्नमेंट सर्वे प्राइमरी टीचर्स है, बी फार्म, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियर, मोर देन 200 से ज्यादा है। नेक्स्ट, ये डेयरी। नेक्स्ट, बायोगैस भी आ गया। ये अभी हिवरे बाजार इस तरह से दिखता है।
एक ही कलर है सारे हाउस होल्ड को, ग्रीन भी बदल गया। और जो पहले ह्यूमन माइग्रेशन था, अभी साउथ अफ्रीकन माइग्रेटरी बर्ड्स साउथ अफ्रीका से हमारे तालाबों के ऊपर आ जाते। नेक्स्ट वन, ठीक है, फास्ट ले लो। और ये सैनिटेशन का Xiaomi वन मॉस्किटो टेक 100 रुपीज ये स्लोगन है। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, एनिमल केयर सेंटर है, जिम है, ये आंगनवाड़ी छोटा वाला टॉयलेट है। देखो छोटा बच्चा पहले तो यूज नहीं करते थे, लेकिन छोटा टॉयलेट बंद है, ओपन है, तो बाहर देखता है तो खुद टॉयलेट एंजॉय करने लगा। आदत लग गई आंगनवाड़ी में, तो फिर अपने आप पूरा गांव ओडीए बन गया। नेक्स्ट, इस तरह से अलग अलग हेल्थ सब सेंटर। और नेक्स्ट नेक्स्ट ये अभी नर्सरी है। नेक्स्ट, और अभी इसी नेक्स्ट, और इसी अनुभव से अवार्ड विवार्ड तो चलते, कभी अवार्ड के नेशनल प्रोडक्टिविटी अवार्ड्स, फर्स्ट नेशनल वाटर अवार्ड, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट अवार्ड, इस तरह से अलग अलग जो के श्री विद्यासागर राव एक्स गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र दे आल्सो विजिट हिवरे बाजार, और उन्होंने राजभवन, क्योंकि एक बात बताने को मुझे खुशी होगी, जब विद्यासागर राव सर गवर्नर महाराष्ट्र हिवरे बाजार विजिट करने आए और टॉप पे गए, हम डिस्कशन करते हुए उन्होंने पूछा, आपको पता है कि वाटर शेड में हैदराबाद के एक साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया। मैंने पूछा हनुमंतराव, उन्होंने कहा आपको क्या पता। मैंने कहा 94 में हनुमंतराव जी हिवरे बाजार आके गए, तो इतने खुश हो गए। और लास्ट ईयर ही उन्होंने मुझे चाय के लिए राजभवन बुलाया था, तो गवर्नर सर थे, उसके साथ हनुमंतराव जी थी, तो काफी अच्छा डिस्कशन हुआ था। नेक्स्ट नेक्स्ट, और जो अभी अपलिफ्टिंग जो हुआ, तो महाराष्ट्र में जो पानी फाउंडेशन का काम आमिर खान और उनकी टीम ने किया। आमिर जी विलेज हिवरे बाजार के लिए विजिट करने आए थे, और उनके पानी फाउंडेशन का बेस जो था वो हिवरे बाजार ही था, उसमें भी काफी अच्छा रोल करने को मिला। नेक्स्ट नेक्स्ट, आइए कारपोरेट विजिट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर जी जिन्होंने 1 कप ऑफ टी के लिए घर बुलाया था, मिसेस तेंदुलकर मैम भी हिवरे बाजार आके विजिट कर गई थी, और उन्होंने भी जो उस्मानाबाद महाराष्ट्र में काम किया था वहां भी हमने उनको थोड़ा सपोर्ट किया था। नेक्स्ट, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किया था, सोशल विलेज ट्रांसफॉर्मेशन मिशन, जो 11 लोगों का फाउंडेशन था, जिसमें अमिताभ जी बच्चन जी थे, आनंद महिंद्रा जी, एक्स सीएम देवेंद्र जी, रतन टाटा जी, और पास में मैं बैठा हूँ, क्योंकि हिवरे बाजार मॉडल लेके 1000 विलेजेस में महाराष्ट्र में काफी अच्छा काम हुआ है। तो ये हमारा काउंसिल की मीटिंग थी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट, तो अलग अलग जो IAS अकादमी जो मसूरी में है, वहां भी हर बैच के साथ बात करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट नेक्स्ट, एक रिसर्च में आया था मैं हैदराबाद। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में मन की बात में हिवरे बाजार का जिक्र किया था। हिवरे बाजार का वाटर मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट और पंचायत। नेक्स्ट, थैंक यू। भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर, ये बहुत ही मतलब इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल जर्नी है आपकी 1989 से लेके अब तक ऑलमोस्ट 30 इयर्स। कुछ प्रश्न पूछे लोगों ने। पहला प्रश्न लेता हूँ मैं। उन्होंने पूछा है कि पहली बार जब आप सरपंच बने, एक नौजवान थे, तो आपको कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप नए थे। पहले जो समस्या थी, जब हमने पहले बार सरपंच बन गया, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी ड्रिंकिंग वाटर। नंबर 2 क्वालिटी एजुकेशन, नंबर 3 क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटीज, और माइग्रेशन था, और जो गांव ब्लैक लिस्टर यानी क्रिमिनल लोकल लीकर प्रिपरेशन ड्रिंकिंग, ये सारी समस्या थी। इसके लिए यूथ और वुमेन्स बहुत परेशान थी। तो इसलिए पहले ये चैलेंजेस जब सामने आ गए, तो उस वक्त ऐसा कोई 89-90 में ऐसा कोई एग्जाम्पल या कोई सपोर्ट भी नहीं था।
लेकिन जब प्रयास करते गया तो ऐसा अपने आप सपोर्ट मिलते गया। और ये चैलेंज बेसिक थे कि अनएम्प्लॉयमेंट और ये ज्यादा प्रॉब्लम्स थे। धन्यवाद। मैंने आपको सुना है कि आप कहते हो लोगों से कि एक मच्छर दिखाओ और अगर मच्छर मिलता है तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा, ऐसा कुछ आप कहते हो। तो जानना ये है कि आपने किस तरह से हिवरे बाजार को मॉस्किटो फ्री किया। हाँ, ये नहीं, शुरुआत में जब हमने 89-90 में प्रयास शुरू किया तो पहला काम किया हमने स्कूल से लेके, जिस स्कूल में मैं 4th तक पढ़ाई की उस वक्त तो ऐसी हालात की बारिश आ गई तो स्कूल को छुट्टी देनी पड़ी। ये 93 तक 92 तक गांव की हालात। और आदत तो हमने ज्यादा प्रयास जो हिवरे बाजार सक्सेस का वो स्कूल में ही। तो पहले बच्चों को जब गांव में कम्युनिटी टॉयलेट हमने बनवाई 92 में, तो 90% लोगों ने यूज नहीं किया। अरे मकान के पास टॉयलेट वो ठीक नहीं। तो फिर हमने आंगनवाड़ी में शुरुआत की, आंगनवाड़ी में छोटा टॉयलेट बनवाया। बच्चे क्या है कि छोटे बच्चे अगर टॉयलेट बंद कर दिया तो डर के मारे वो बाहर बैठना पसंद करते, तो इसलिए हमने पहले आंगनवाड़ी में छोटा क्वालिटी का टॉयलेट बनवाया। जब बच्चे अंदर बैठते अब बंद है और आधा ओपन है और बाहर तो बच्चे खेल रहे, तो अपने आप टॉयलेट एंजॉय करने लगे, बच्चे टॉयलेट यूज करने सीख गए। फिर हमने वो 1st से लेके 4th तक आगे लेके गए। फिर 8, 9, 10, 10 तक स्कूल है हमारा। फिर 10 तक को आदत लग गई। और जब बच्चे हर क्लास की एक जिम्मेदारी, मेरा खुद का बेटा जो प्रसन्न अभी मदद कर रहा है और मेरी बेटी अभी MSc एनवायरमेंटल साइंस किया, लड़का जो है बीच एग्रीकल्चर किया उन्होंने, तो दोनों भी 10 तक गांव में पढ़े। तो वो भी जिस दिन टॉयलेट क्लीन करने की उनकी क्लास की जिम्मेदारी, तो खुद टॉयलेट क्लीन करते थे। इससे बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस बच्चों का, अगर गांव के पंचायत प्रेसिडेंट का लड़का ही टॉयलेट क्लीन करता, हम क्यों नहीं। अब फिर गांव में हर क्लास को एक रोड दिया जो क्लीन रखने के लिए। तो फिर यह आदत लग गई। शुरू में तो परिवार वालों ने अपोज किया, हमारे बच्चे तो स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, टॉयलेट क्लीन करने के लिए थोड़े आते। जब बच्चों को घर में आदत लग गई और घर के पास अच्छे पेड़ दिए, प्लांटेशन किया, तो अपने आप ये आदत उनको लग गई और बच्चे सीख गए, अरे नहीं हाथ धोना चाहिए। अभी देखो लॉकडाउन और ये कोरोना के कारण सैनिटाइजर का यूज करना पड़ता, हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी किसी, हर घर में सैनिटाइजर यूज करे लोग। तो ये आदत लोगों को लग गई। इसका कारण है स्कूल। 1st से लेके आंगनवाड़ी से हमें 10 तक काफी अच्छा, और वाटर बजट भी हमारे स्कूल के बच्चे करते हैं। नशा मुक्ति का काम भी स्कूल के बच्चों ने किया है। और जो है कि घर घर में टॉयलेट बनाना, उसका यूज करना, हम ज्यादा लिटरेट किया बच्चों को स्कूल में, बच्चों को साथ बैठना, उनको एक्सपोजर के लिए कहीं बाहर लेके जाना, तो बच्चों को खुशी मिलती आ रही सरपंच के साथ, प्रेसिडेंट के साथ बसने का, बैठने का मौका। तो इस तरह से हमने आदत बढ़ाई और आज पूरा गांव 100% टॉयलेट तो यूज करता है। ओपन ड्रेनेज भी गांव में नहीं है। और इसी कारण एक मच्छर दिखा 100 रुपए ले लो, ये हमारा स्लोगन बन गया। आपने कोरोना की बात की, तो उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि हिवरे बाजार ने कोरोना से कैसे, हिवरे बाजार कोरोना से कैसे लड़ाई लड़ रहा है या फिर कैसे प्रिकॉशंस ले रहे हैं हिवरे बाजार में। एक तो हमारी दूसरा प्रश्न अहमदनगर है, हाँ, उससे संबंधित दूसरा प्रश्न ये है कि ये जब लॉकडाउन उठ जाएगा तो आपका एक गांव का क्या एक्शन प्लान होना चाहिए। इसमें तो प्रश्न बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आप कोरोना को पॉजिटिव लेने की जरूरत है। उसके लिए तो सोशल डिस्टेंसिंग ये एकमात्र उपाय। लेकिन हमने क्या, जब कोरोना का अहमदनगर सिटी तो रेड जोन में, बगल में डिस्ट्रिक्ट पुणे रेड जोन में, औरंगाबाद रेड जोन में, और हम रेड जोन में ही आते, फिर भी लॉकडाउन का हिवरे बाजार में कोई समस्या नहीं आ गई। करीबन मोर देन 10 से ज्यादा पोकलैंड गांव में काम कर रहे, कुछ ट्रैक्टर से, टीपर से, क्योंकि पिछले 30-40 साल में जो बंजर जमीनी पड़ी थी वो पोकलैंड के कारण हो गई। क्योंकि हमने डिसिप्लिन इतना अच्छा रखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग से ही हम काम करेंगे।
और जो हमारे शुरू में जब लॉकडाउन 19 मार्च को हमने प्लान किया, क्योंकि पहले से मुझे थोड़ा पता था कि 20 के बाद ये ऐसा कुछ होने वाला है, तो इसलिए हमने पहले प्लान किया जो भी लोग गांव से है, करीबन 86 फैमिली जो पुणे, मुंबई और ठाणे से वापस शिवरे बाजार आ गए, उनको हमारा ग्राम सुरक्षा नाम का एक नेटवर्क, 30 सेकंड का एक कॉल चला जाता है, 800 मोबाइल कनेक्ट है। एक मैसेज दिया मैंने कि लॉकडाउन अगर हो सकता है, इसलिए हमें प्लानिंग की जरूरत है। अगर आप मुंबई में है, पुणे में है, तो आप आपकी व्हीकल से आ जाएंगे, नहीं तो हम विलेज से व्हीकल भेजेंगे आपको। आप ट्रेन से या बस और किसी 4 व्हीलर से नहीं आएंगे, खुद की व्हीकल से आएंगे, नहीं तो हम गांव से व्हीकल भेजेंगे। ये पहला काम किया। और जो जितने भी 86 लोग गांव में आ गए, सबको क्वारंटाइन कर दिया हमने, घर में रखा। कंप्लीट 20 दिन वो लोग घर से बाहर नहीं आ गए, डिसिप्लिन पाला उन्होंने। तीसरी बात हमने ये की कि ज्यादा लोग रेशन लेने आते आते, तो वहां हमने डिस्टेंसिंग रख के प्लानिंग किया, खाली 5 लोग आएंगे, सुरक्षित अंतर रखे गए। और तीसरा ही क्या कि डेयरी मिल्क कलेक्शन, डेयरी के ऊपर भी बहुत लोग आते थे, वहां भी हमने इसी तरह से प्लान किया। और तीसरी रही बात, गांव में जितने वाटरमेलन हो या वेजिटेबल जो कुछ सा खाने के लिए, तो ये तो फिर मार्केट बंद हो गए थे, तो हमने क्या किया, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था तो वो बराबर जिसको जरूरत है उसके घर तक गए। इतना ही नहीं, कनेक्टेड 10 विलेजेस को हमने काफी अच्छा प्लान दिया, इसके कारण उनके 5-6 लाख रुपए की नुकसान होने वाली थी, वो बच गई, क्योंकि डिसिप्लिन के कारण सभी लोगों के आ रहे नहीं, हुरे बाजार में तो इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो हम क्यों ना करें। और इसका ये कि पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत गांव में नहीं पड़ी, और पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं, और इसके कारण गांव के सारे कामकाज कारोबार ठीक से चलता था, कोई समस्या ना गई। क्योंकि हमने हमारा नागरिक रजिस्टर बनवाया था गांव का, गांव में कितने लोग बाहर गए, वो कौन से शहर में कहाँ काम करते, उनका डिटेल एड्रेस वो पहले से ही हमारे पास था। क्योंकि हमने ये जो मैसेज के लिए जो ग्राम सुरक्षा का पोर्टल तैयार किया था, वो पिछले 2-3 साल से था। पहले हम जंगल में आग लगती थी करके SMS 1 था, और पिछले 3 साल से ग्राम सुरक्षा का यूज किया। इसका फायदा यह है कि हमारे गांव में कोई चोरी नहीं होती, जंगल में आग लग गई, एक 10 मिनट के अंदर 200 लोग जंगल में फॉरेस्ट को बुझाने के लिए जाते, और इसी का हमने यूज किया ये कोरोना के लिए, क्योंकि उनके सबके एड्रेस हमारे पास, मोबाइल नंबर थे, कहाँ रहते तो था, और 30 सेकंड का एक कॉल गया हमारा, सब जाग गए। और 2 दिन के अंदर 20 तारीख को एक ही दिन 19 और 20 में सभी 86 लोग वापस गांव में आ गए। और जो शहर में रहे उनको कहा कि आप सुरक्षित है तो वहां रहो, कुछ समस्या है तो हमें बता दीजिए, हम वहां कनेक्ट करेंगे। और ये फायदा हुआ कि हुरे बाजार आज सेफ साइड में। और नेक्स्ट प्लानिंग हमारा अभी बारिश हो गई, अभी सीड का प्लान किया, सीड किसानों के लिए जरूरत है। उसके बाद बाकी पावर सप्लाई हो, वो भी काफी अच्छा प्लानिंग है। सभी प्लानिंग हमें आगे का रेनी डेज का भी करके रखा। और उसके बाद मार्केट कैसा करना है, अगर खरीफ के बाद भी अगस्त सितंबर तक लॉकडाउन का कुछ हुआ तो क्या करना है, फसल तो खराब नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें क्लस्टर में और शहर में भी, गांव से जो 10 गांव से लोग पुणे में, मुंबई मार्केट में ऑरेंज हो या स्वीट ऑरेंज हो ये भेज दिया था, या ग्रेप्स वो भेज दिए थे हमने। इसलिए हमारा प्लानिंग परफेक्ट है। और अभी तो गांव के लोगों ने डिसीजन लिया कि हर साल हम 10 डेज का लॉकडाउन करेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट को भी, नेचर को भी सपोर्ट होगा, खुद की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, फैमिली रिलेशन बढ़ेंगे, और गांव के लोग एक साथ मिलके लॉकडाउन करते हैं तो गांव की यूनिटी भी बढ़ेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट प्लान है कि हम 10 दिन या 6 महीने के अंदर 5 दिन, आगे के 6 में ये लॉकडाउन हम करेंगे। और ये लॉकडाउन के कारण हैप्पी होम और हैप्पी विलेज ये कंसेप्ट हम ला रहे हैं, GDP हम हैप्पीनेस का बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट। क्या बात है।
दो चीजें आपने कही। एक तो अगले साल से 10 दिन का लॉकडाउन रहेगा, जिससे कि आप हैप्पी होम की कल्पना को बढ़ावा दे रहे हैं। और साथ में आपने बात की एक जीडीपी जो कि हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है, और हमारा अगला आने वाला वेबिनार भी उससे जुड़ा हुआ है। बहुत प्रशंसनीय बातें हैं। दूसरा सवाल जो कि शायद आपने उसका जवाब दिया होगा, बट फिर भी लॉकडाउन उठने के बाद महाराष्ट्र बहुत सीरियस है, और कुछ आपने सोच के रखा है कि लॉकडाउन उठने के बाद हम गांव में ये चीजें करेंगे या ये चीजें नहीं होने देंगे, ऐसा कुछ आपने सोच रखा है? हाँ, एक है लॉकडाउन उठने के बाद जो लोग मुंबई से और लाभार्थी है। अगला सवाल था टैक्स सिस्टम को लेके। आपके हिवरे बाजार में सुना है कम से कम 80 मिलियनियर फार्मर्स हैं। तो क्या हाँ आपका टैक्स सिस्टम डिफरेंट है? जिनकी जितनी इनकम अकॉर्डिंगली वो टैक्स पे करते हैं, ऐसा कुछ है आपका हाँ, नहीं, टैक्स सिस्टम कैसा? एग्रीकल्चर इनकम तो नहीं होता है ना। जो भी सर्विस वाले हैं, जॉब वाले हैं, तो गवर्नमेंट टैक्स तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो स्टेट का तो वो पे करते हैं। और एग्रीकल्चर इनकम जो है तो ओनली एग्रीकल्चर जो है तो वहां कोई समस्या नहीं। और जो टैक्स सिस्टम गवर्नमेंट के वो तो 100% लोग पे करते हैं। अच्छा। और नो। मिलेनियर का कैसा है, वो डिपेंड होता है रेनफॉल पे। हम्म। एक साथ 2 साल में अच्छी बारिश होती है, तीसरे साल में ड्राउट आ जाता है, तो हम्म। उस साल तो कम हो जाता है। तो अप एंड डाउन चलता ही है रेन के कारण। अच्छा। एक और पार्टिसिपेंट है, उन्होंने पूछा है कि आप तो हमारे इंस्पिरेशन हो, मॉडल हो, आप हमको मोटिवेट करते हो, लेकिन आपका इंस्पिरेशन कौन है? आपको कौन मोटिवेट करता है ऐसे इतने अच्छे अच्छे काम करने के लिए? नहीं, क्या है कि अनुभव, एक्सपीरियंस, यही हमारा मोटिवेशन होना चाहिए। और खाली प्रेरणा से चलेगा नहीं। हम तो सारे राष्ट्र पुरुषों की जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं, लेकिन खाली पूजा करते हैं, कृति नहीं करते। तो मेरा मोटिवेशन है कि जब मैंने शुरुआत किया बचपन, मेरा गांव और गांव में जो एनवायरमेंट नेचर था, ये मेरा पहला मोटिवेशन था। क्योंकि हम जब बच्चे थे स्कूल में पढ़ा करते थे, तो सरफेस वाटर ड्रिंकिंग के लिए यूज करते थे, इतना जी। ग्राउंड वाटर लेवल अच्छा था। हम्म। नंबर 2, हर सीजन के फ्रूट्स गांव में मिलते थे। जैसा मैंगो हो तो गांव में मिलते थे, जैसा जामुन हो, हर सीजन के फ्रूट्स हम जंगल में खा लेते थे, या फार्म बंड्स के ऊपर, या गांव में खा लेते थे। और जब मैंने देखा 77 तक ये सब चलता था। बाद में जब कंटिन्यू 3 ड्राउट आ गए, 10 साल में 3 ड्राउट, उसके बाद सब पेड़ टूट गए। जामुन के पेड़ टूट गए, बेर के पेड़ टूट गए, आम के पेड़ पानी के कारण खराब हो गए। और जब देखा रे बचपन में कितना अच्छा था, कुएं में तैरने के लिए पानी था, कहीं हम्म। स्विमिंग टैंक जाने की जरूरत नहीं थी। लोग तो लिटरेट नहीं थे लेकिन कल्चर थे, एक दूसरे को कोऑपरेट करने का नेचर गांव में था। और 78 के ड्राउट के बाद कितना बदलाव गांव में आ गया। तो 89 में जब मैंने तय किया गांव में काम करना, तो मेरी प्रेरणा रही मेरा बचपन, बचपन वाला गांव तैयार करने का। और इसके लिए पहला प्रयास स्कूल से किया। स्कूल की नर्सरी, फिर नर्सरी में हर टाइप के फ्रूट्स। फिर जून जुलाई बारिश हो गई तो जो भी स्टूडेंट लेके जाएगा प्लांट, वो नेक्स्ट ईयर बड़ा करेगा, तो उसको बाल वृक्ष मित्र अवार्ड देते थे। और इसके कारण हर घर के पास मोर देन 4 वैरायटीज फ्रूट्स है, और 4 और 5 अलग अलग सीजन में फ्लोरिंग होने वाले स्मेलिंग प्लांट्स है। इसके लिए बचपन में जो मैंने देखा था, वही आज देखो अप्रैल एंड तक हमारे झरने में पानी होता है। इतना अच्छा है कि अभी वाटर लेवल बढ़ गया। उसका कारण है कि ट्यूबवेल नहीं है, ट्यूबवेल बैन है। और ट्यूबवेल बैन के कारण 31 मई को 30 या 40 फीट ग्राउंड वाटर लेवल है, जो बिफोर 95 120 फीट। इसे मेरी प्रेरणा मेरा बचपन रहा। और जब हमने काम करना शुरू कर दिया एक तो जितनी भी समस्या आ गई, वो समस्या के कारण हमारे सामने सोल्यूशन आ गया। फिर लाइन डिपार्टमेंट
स्टडी हो गया, फिर लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो गई, फिर 95 में अन्ना हजारे जी गांव में आ गए, उस वक्त वो स्टेट लेवल कमेटी के प्रेसिडेंट थे। फिर हिवरे बाजार के लिए मॉडल विलेज प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, वो 2 साल में खत्म कर दिया। और पिछले 13 साल से वो मैं स्टेट लेवल कमेटी का आज मैं प्रेसिडेंट। जिस प्रोजेक्ट में हिवरे बाजार में काम करके सक्सेस पाई, वही प्रोजेक्ट का अभी मैं लास्ट 13 इयर्स, पहले विलासराव जी देशमुख सीएम थे, उन्होंने प्रेसिडेंट बनवाया, बाद में थोड़े बदलाव आ गए, फिर बगा 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी सेना की सरकार आ गई। उस वक्त के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने कहा अच्छा काम करो, क्योंकि मैं किसी राजनीति से दूर, चाहे रिजर्वेशन आ गए तो डिप्टी सरपंच बनने का, मैं जिला पंचायत मेंबर भी रहा और बहुत फोल्ड भी हो गए, विधायक बन जाओ, सांसद बन जाओ, बहुत सारे अच्छे रिलेशन सभी के साथ है, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी जी, तो सभी का सपोर्ट है। लेकिन मैंने तय किया, जो अनुभव मुझे आया, एक सक्सेस मॉडल बन गया, इसके कारण दूर दूर से लोग आज हिवरे बाजार देखने आते हैं। 100 से ज्यादा कंट्रीज से लोग हिवरे बाजार विजिट करने आते, डेली मोर देन 400-500 डेलीगेट्स रोज हिवरे बाजार विजिट करते। इसलिए मैंने कहा कि बस यही काम हमने बनाए रखना है, ये लॉन्ग टर्म सक्सेस रहेगा तो ये देख के मूवमेंट बन जाएगी। इसलिए मैं राजनीति से दूर हूँ, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, सभी ने सपोर्ट किया, सरकार ने किया, गवर्नमेंट ने किया, उसके कारण आज कोई परेशानी नहीं है गांव में। ठीक है जी, बहुत अच्छी सोच की आपने, इतना किया, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिली, बट फिर भी आप वहाँ बने रहे सिर्फ अपने गांव के लिए। एक प्रश्न है शिक्षा के संबंध में, उन्होंने पूछा है, और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि गांव में देखा गया है कि लड़कियों की शिक्षा की तरफ जनरली ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं जनरली। तो आपने लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए? वो तो क्या है कि पहले 4th स्कूल था, फिर जिनके अपने रिलेटिव्स अच्छे हो गए वहां पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता। जब अभी पहला 4th स्कूल था, पर 7th तक बन गया, अभी 10th तक है, और क्वालिटी पढ़ाई, और 100% जो लड़कियां है 12th तक तो वो पढ़ती है, बाद में कोई डीएड बन गई, टीचर बन गई, इंजीनियर बन गई, बी.फार्म बन गई, 2 डॉक्टर बन गई लड़कियां गांव में। इसलिए अभी गांव में जो है डॉक्टर है, टीचर्स है, आर्मी मैन है, और महिला तो ज्यादा इन्वॉल्व होती है गांव में, और महिला की इन्वॉल्वमेंट के कारण लड़कियां को ज्यादा, क्योंकि मेल फीमेल रेशियो में देखेंगे तो फीमेल रेशियो ज्यादा है हमारे गांव में, इसलिए महिला का एजुकेशन लेवल काफी अच्छा है। अच्छा, एक प्रश्न ऐसा आया है कि आप अच्छा क्रिकेट खेल चुके हैं सरपंच बनने से पहले, तो हाँ आप क्या उसको मिस करते हो? आपकी शायद कुछ महत्वाकांक्षा भी रही होगी, तो हाँ, अभी क्या गांव में कुछ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हो? अभी गांव में तो होता है, लेकिन क्या होगा कि क्रिकेट तो करियर वहां मुझे करना था, अच्छा खेलने को भी मिला। जब ऑल इंडिया में खेला तब चेतन शर्मा, मनिंदर सिंह, बहुत बड़े बड़े नाम थे जो ऑल इंडिया के लिए चेन्नई आ गए थे, और वो तो सब टेस्ट क्रिकेट का नॉकिंग करने वाले थे। रणजी ट्रॉफी प्लेयर तो हर टीम में, मैं पुणे यूनिवर्सिटी से था, तो 16 में से 10 रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स। तो इसलिए मुझे इस सुनंदन लेले जो अभी क्रिकेट रिपोर्टर है, जो इंडिया की टीम के साथ पूरी दुनिया भर घूमते, तो आज मैंने क्रिकेट मिस किया, क्योंकि खुद का फ्यूचर नहीं बना, लेकिन क्रिकेट के कारण गांव का फ्यूचर बन गया। क्योंकि क्रिकेट और स्पोर्ट ऐसा है कि अगर जीत जाने के बाद हवा में नहीं जाना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, और जब हारने के बाद डिप्रेशन में नहीं जाना है। और क्रिकेट और स्पोर्ट ऐसा है कि टीम वर्क, अगर सब एक एक रन बचाएंगे तो इंडिया जीत सकती है। खाली सचिन जी अकेले सेंचुरी लगाएंगे और बॉलिंग ठीक नहीं हो गई तो हम हार सकते। इसलिए डेवलपमेंट ये भी एक क्रिकेट। पिछले अभी देखो, मैं पिछले 30 साल में इतना घूम चुका हूं, हर मंथ मेरा करीबन मोर देन 4000 किलोमीटर टूरिंग होता है। ऑन पेपर मेरा किलोमीटर है, मैं 14 लाख किलोमीटर घूम चुका हूं व्हीकल। महाराष्ट्र में घूमता हूँ, मंथ 2 या 3 स्टेट में जाना होता है।
और एक है कि चलो खुद को खुशी मिलती है, चलो एक गांव तो बन गया। अभी महाराष्ट्र में 100 मॉडल गांव बन रहे कि जो जहां बहुत खराब हालत थी, 42 फार्मर सुसाइड थी यवतमाळ डिस्ट्रिक्ट विदर्भ में। वो गांव जो कोठोड़ा नाम का हमने अडॉप्ट किया, अभी पिछले लास्ट 4 ईयर नॉट ए सिंगल फार्मर सुसाइड वहां पर। चाहे मराठवाड़ा में लातूर, वहां ट्रेन से पानी गया, लेकिन लातूर के बगल में एक दवनगांव नाम के गांव हमने बनवाया, जहां अभी पिछले 3 साल से कोई पीने के पानी की समस्या नहीं। जहां गढ़चिरौली नक्सलाइट एरिया है, वहां हम रात को 1 बजे ग्राम सभा की थी, सब लोग ग्राम सभा में था, वहां कुछ नहीं था। और वहां एक मॉडल गांव गुरनोली करके कुरखेड़ा ब्लॉक में बन गया है गढ़चिरौली में। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हर, चाहे जंगल एरिया हो, ट्राइबल एरिया हो, ड्राउट प्रोन एरिया हो, वहां हमने गांव में जाके ग्राम सभा करवा के वहां काम किया, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स वहां मिले। बस खुशी मिलती है। ये खुशी के कारण आज मैं क्रिकेट से दूर हूं, लेकिन सचिन तेंदुलकर जी मुझे कहा उनके घर पे बुलाते, या मिसेस तेंदुलकर मैडम कब हिवरे बाजार आना, मुश्किल है ना। तो क्रिकेट खेला, और क्रिकेट का गॉड जो है सचिन तेंदुलकर जी, उनके घर चाय पीने का अवसर मिला। और मुझे इसी कारण बड़ी बड़ी आमिर जी हो, अमिताभ बच्चन जी हो, बड़े सिने एक्टर्स हो, सबके साथ देश के प्रधानमंत्री अगर पोपटराव पवार में सामने से आ गए तो नाम लेके पुकारते, ये बात। अब बीच में मैं जब चंद्रबाबू नायडू जी सरपंच सीएम थे, तभी रालीगांव सिद्धि विजिट आई थी, तभी उन्होंने मुझे बुला के डिस्कशन किया था। उसके बाद अभी केसीआर सर ने भी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने मुझे हैदराबाद बुलाया था, वहां बैठ के। आपकी आवाज नहीं आ रही है पवार सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बाद में डिस्कशन, ये मौका कैसा मिलता, ये खुशी मिलती है। दिन भर खाने को नहीं मिल गया तो भी रात को नींद आ जाती थी। और जब एक 5 साल के लिए मैं चुन के आ गया था इंडिपेंडेंट जिला पंचायत में, तो ये कहीं प्रॉब्लम हुआ तो 2 दिन खाना बंद हो जाता था। आज मैं खुद को पॉजिटिव रखता हूँ। आज चलो कोई तो एक हिडन पावर है जो हमसे ये काम करवा के ले रहे, बस इसी उम्मीद के साथ मैं काम करता हूँ, जाता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। आखिरी प्रश्न है और वो सब जानना चाहेंगे कि हिवरे बाजार में हेल्थ केयर कैसे चलता है, दवाखाना या फिर लोग कोई जो जरूरत है उनको क्या बाहर जाना पड़ता है, ये आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी गांव में 3 डॉक्टर है, फिर भी नो नीड ऑफ डॉक्टर और हेल्थ केयर, क्योंकि हम गांव में जो है कि स्कूल को बच्चों का हेल्थ कार्ड रखा है, अब इसे 25 साल से करते, और हर साल गांव में कैंप चलता है हमारा। एक हर साल में अलग अलग थीम होता है, कार्डियक हो, आई कैंप हो, या कैल्शियम चेकिंग हो, और हर साल हम हीमोग्लोबिन चेक करवाते हैं महिलाओं। हमारे गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, लेकिन प्राइमरी गवर्नमेंट का हेल्थ सब सेंटर है। वो इतना अच्छा है कि हेल्थ सब सेंटर में एडमिट करने की सुविधा है, डिलीवरी वहां पर हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी। और जो है कि हम गांव का हर फैमिली का, और ये कैसा मुझे अनुभव आया कि जब कोई बीमार होता है, और गांव में ऐसा है कि जो ज्यादा क्रिटिकल में नहीं जाता, तब तो खुद को फील नहीं करता मैं बीमार, और बाद में एडमिट होता है तो फोन आ जाता है, सरपंच जी, प्रेसिडेंट जी, मैं एडमिट हूँ, डॉक्टर साहब को बोलो हमारा बिल थोड़ा कम कर दो। ये समस्या फिर ध्यान में आया कि अरे बीमारी नहीं होनी चाहिए, लोग प्राइमरी स्टेज को ही उनको अगर हेल्थ केयर, इसलिए हमने किया काम जो गांव में किया, किचन फॉर हेल्थ, ये प्रोग्राम शुरू किया पिछले 5 साल से। और आज कैसा कि किचन फॉर टेस्ट है। कोरोना अमेरिका में ज्यादा क्यों हो गया पहला, तो वहां किचन ही नहीं, सब रोड के ऊपर है, और हमारे देश में किचन है घर में, लेकिन किचन फॉर टेस्ट हुआ था, तो हमने किचन फॉर हेल्थ किया। फिर योगा है, मेडिटेशन है, ये भी प्रयास हम करते हैं। उसके साथ साथ जो हाइजीनिक हमारी प्रैक्टिस है वो काफी अच्छी, हैंड वॉश या टॉयलेट के बाद में वो क्लीनिंग रखना, गांव का ओपन ड्रेनेज बंद रखना। 90%
जो है प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, वो पानी के कारण है। इसलिए हमने क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर पहला किया और ओपन ड्रेनेज बंद कर दिया, फिर किचन की ओर ध्यान गया। अच्छी आदत हमें हॉस्पिटल से दूर रखती, इससे हमारे गांव में नो नीड ऑफ डॉक्टर, ये कंसेप्ट। फिर भी आप जब राउंड पे निकलते होंगे अपने गांव में और शायद दवाखाने के बाजू से गुजरते होंगे, वहां पे कोई मेडिकल ऑफिसर होता होगा, आप उनको शायद एक दो चीजें कहते होंगे जो कि आप देखना चाहते हो। आप इस वेबिनार में बहुत सारे लोग हैं जो हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे, फिर वो आपके गांव नहीं, के एक ही डॉक्टर्स हो या संदेश ये देता हो। हूं मैं, जैसा कि लॉकडाउन और क्वारंटाइन कर दिया, तो हमारे हेल्थ सब सेंटर के जो आशा वर्कर है, उसके साथ उसके सपोर्टर है, तो वो खुद रोज मॉर्निंग और इवनिंग वो घर में विजिट करते हैं। और हर घर का आग की बीमारी किसको है, या कोई सर्दी है या परसा, ये सब हम हेल्थ सेंटर, क्योंकि जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं उनके लिए गवर्नमेंट सिस्टम है। हमने आंगनवाड़ी, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और हेल्थ सब सेंटर, इसको एक साथ लिंक किया पंचायत में और ध्यान दिया। इसके कारण वो लोग जो डॉक्टर पीएचसी में विजिट करने सब सेंटर आते, वो यही पूछते हैं कि सरपंच जी अभी गांव में कोई पेशेंट नहीं है, अगर होगा तो हम मैसेज दे देते हैं मुझे। तो इसलिए कि हमारा ब्लड ग्रुप हो या हेल्थ की बाकी बीमारी के बाद उनका जो कार्ड बनवाया है, वो कार्ड के आधार पर हम सब लोग चलते हैं। क्योंकि अभी कैंसर की बीमारी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और कैंसर की बीमारी को कंट्रोल करना है तो उसके लिए प्राइमरी स्टेज पर भी कुछ होना चाहिए। हमने गांव में कैंसर चेकअप कैंप भी किया था, और कैंसर के कारण क्या है, उसके रीजंस क्या है, डाइट कैसा होना चाहिए, तो ये भी हम लोगों को सिखाते हैं। और हेल्थ सब सेंटर और हेल्थ सेंटर के डॉक्टर और हमारे जो सिविल सर्जन है, वो लोग भी 2 महीने में 3 महीने में गांव में हेल्थ चेकअप कैंप करवाते हैं, और इसके कारण कोई परेशानी नहीं होती। तो डॉक्टर भी खुश है और हम भी खुश है, और डॉक्टर खुश इससे है कि चलो हिवरे बाजार में हेल्थ का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो ज्यादा काम नहीं करने को मिलता है। तो ऐसा ही होना चाहिए कि हेल्थ अच्छी रहेगी तो बाकी समस्या भी अपने आप कम होगी। आपका जीवन पूर्णतः सेवा से भरा रहा है अब तक, और इस वेबिनार में जो भी लोग जुड़े हैं वो भी किसी न किसी सेवा में हैं, खासकर हेल्थ केयर से जुड़े हुए लोग, डॉक्टर्स, नर्सेज या जो भी है। तो और वो लोग सुधाकर जी, और एक मैसेज देना चाहूंगा मैं, अभी तो कोरोना आ गया, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हम परेशान थे, क्लाउड बर्स्ट होना या ड्राउट आना, दुनिया भर सिलसिला चलता था। अभी कोरोना आ गया तो और फ्यूचर में आगे आके और नए नए वायरस आ सकते, इसलिए हम मेंटली, मैंने देखा कि 77 जो ड्राउट थे वहां फार्मर सुसाइड नहीं थी। आज मेंटली लोग बहुत डिस्टर्ब है, और डिस्टर्ब हो गए मेंटली तो अल्कोहल की ओर जाते हैं वो लोग, और अल्कोहलिक हो गए तो गांव में फैमिली में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस का एक कारण है, तो मेंटली लोग आज बहुत वीक हो गए, इसलिए मेंटली स्ट्रांग करना और हेल्थ स्ट्रांग रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्यूचर में बढ़ती हुई आबादी, अलग अलग वायरस, इसका सामना करना है, तो हमारे हाथ एक ही, सब मिलजुल के जाति पाति राजनीति को दूर रखे, हम हमारे गांव सुरक्षित करेंगे, अपने आप सिटी सुरक्षित होगी। क्योंकि गांव से माइग्रेशन है करके मुंबई में, धारावी में जो चल रहा है, पता नहीं कौन कहाँ रहता है, कैसा रहता है, इसके कारण उसका फैलाव ज्यादा हो गया। इसलिए हमें अभी वही प्लान करना है कि गांव और शहर को लिंक करके हमें पहला नेचर के साथ मिलकर काम करना चाहिए, हमारा ग्राउंड वाटर ठीक रख के काम करना चाहिए। नहीं तो फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज के तो प्रॉब्लम है ही, उसके साथ ड्रिंकिंग वाटर की बहुत बड़ी समस्या फ्यूचर में आने वाली है। इसे मुझे जब पद्मश्री का अनाउंसमेंट हुआ, खुशी इस बात की हो गई कि देश के पहला सरपंच हूँ जिसे पद्मश्री मिल गया, और इसका कारण था कि वाटर मैनेजमेंट और क्रॉप मैनेजमेंट, इसके आधार पर जो प्रयास किया, इससे हमें वही आगे लेके जाके काम करना है। ठीक है।
धन्यवाद सर, आपके समय के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, और आपका ये मार्गदर्शन हमको हमारे जीवन में इंस्पायर करता रहेगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। So with this, on behalf of Dr. Reddy's, I thank our speaker, Shri Padma Shri Popat Pawar, and all the participants for taking time out. Mahatma Gandhi once said, India does not live in its towns, but in its villages. And the transformation of villages will transform India. I want to leave you with this thought. I hope that you will take care of your thoughts and will not neglect your health.